Good afternoon, kids. How are you all? Yes, bachon. Can you all see me and hear me? Hi, Amisha. Study time. Good afternoon, Achal. How are you all? कैसे हो आप सब? Yes, please tell me in the chat box. I can see 260 kids right now in the chat. Very good. Awesome. Yes, I can see Sanskar. Chalo, ma'am is ready to take your names. Come on. Are you ready for the NEET Sangram? मैम नाम लेने वाली फटाफट से आई कैन सी शालिनी यस आई कैन सी राइबोसोम्स ओ माय गॉड वी हैव राइबोसोम्स संजीव ओ माय गॉड इतने सारे बच्चे गुड आफ्टरनून हेमंत गुड आफ्टरनून अश्विनी अभिषेक आई कैन सी ओ माय गॉड नाम इतने जल्दी ऊपर जा रहे हैं दैट आई एम नॉट एबल टू टेक योर नेम्स ओके सो गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों वेलकम टू द नीट संग्राम द नीट क्रैश कोर्स 2021 द पार्ट 1 on cell the unit of life. So once you are in 12th standard, you actually forgot the 11th standard chapters, right? बहुत ना इंसाफी है रे बाबा है कि नहीं? How can we forget the 11th chapters, the botany chapters, right? The chapters which are very important for needs. One of those is cell the unit of life, having a lot of weightage. Correct? Yes, Muskan. Yes, Amisha. ओके बच्चों बहुत सारे बच्चे पूछ रहे मैम आप कैसे हो हमेशा की तरह मैम इज सुपर ऑसम ओके बच्चों लेट अस स्टार्ट सो नीट संग्राम के लिए आर यू ऑल रेडी यस सो नीट संग्राम के लिए अगर रेडी हो तो लाइक करते चलो और प्यार बरसाते चलो लेट अस स्टार्ट द सेशन दिस इज द कैलेंडर फॉर द वीक बच्चों ओके टुडे इन क्रैश कोर्स आज से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा टारगेट कंप्लीट करना every chapter either in 2 parts or either in 3 parts but after that you are going to have test your knowledge series जहाँ पे हम करेंगे मेंटी okay on that particular chapter excited so देखते हैं what is your knowledge right now on cell the unit of life तो मैं तो पढ़ाऊंगी बट आप मेरा साथ देंगे so all of you the pen ready the notebooks ready Okay, so in CBSE 2022 we are going with transportation in plant जहाँ पे already हम एक पार्ट कर चुके हैं 2021 में क्रैश कोर्स आज से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे we are taking up 11th chapter cell the unit of life बच्चों okay so subscribe to the channel Vedantu NEET made easy and slides किसने बनाई है उनके लिए दिल ही दिल दे दो यार दिल ही दिल में दिल दे दो come on बच्चों in the chat box yes Mamta yes Amisha yes Nakshatra I remember you Hi Lalit. Hi Sai. Okay, thank you Sumaya ma'am for the awesome slides and please subscribe to the channel. Click on the bell icon. All पे click करना नको भूलने का. Yes बच्चों, this is the Telegram link. Download Telegram from Play Store. Play Store से Telegram download कर लीजिए and ये link join कर लीजिए so that you become the part of the family Vedantu NEET made easy. Okay. Coming to the pro subscription बच्चों. Very less time is remaining for NEET 2021. Okay, it's already October gone, right? November, December, January, February, March. You can say बाकी time तो आपका revision में जाएगा, but you have to take care that Samdisha, yes, you work on your weak areas, correct? So if you want to join pro subscription, it will help you a lot because इसमें कोई भी crash course आएगा वो भी involved होगा. It is involving the crash course plus micro course of small chapters, 1 chapter, 2 chapter, 3 chapters, and also it will provide you daily classes for physics, chemistry, biology. You will get a chance. अभी नीट से पहले आपके जो भी weak points है बच्चों, आप वो please उसको solve कर लीजिए. ठीक है? Right? Yes, net fire. So you will have an option to learn in English and Hindi. कौन-कौन से subjects होंगे? Physics, chemistry, biology. तीनों ही subject. Taught in English and Hindi. बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है You will get an instant in class doubt solving बच्चों Yes come on So 6 months अगर लेके चलते हैं कि 6 महीने remaining है 6 महीने में से 2 महीने तो आप ऐसे ही छोड़ दो ठीक है When there will be a NEET fever all around the YouTube all around the world all the students are preparing for the NEET and therefore I assume 4 months but जब तक आपका नीट नहीं होगा तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर यू 6 मंथ्स के लिए अगर आप लोगे और अगर नीट आगे बढ़ जाता है फॉर 7 मंथ्स और 8 months still we will continue right so 5200 per month
you have to pay. So if you want to get this pro subscription, बच्चों अगर आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है and you want to go for something which is planned study, so vdntu.in/ytpro is the code and link में जाओगे तो grade select करना, 12th के बच्चे हो आप, grade है आपका 12th and UG 2021 NEET UG coupon code सौंदर्या, right? Yes, Riya, DK Pro. Riya, for droppers, we have a separate dropper batch. यलगार हो, संग्राम हो, यू कैन सी 7,800 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? कल तक आपको 12,000 का मिल रहा था दशहरा सेल पे, बट नाउ गेमिंग, यस आई एम गुड, 7,800 का मिल रहा है. नो त्रिशला. अच्छा, नाउ रिया योर क्वेरी. Okay, vPro Lite for NEET 2020 droppers. Riya Soni, you have been asking me this. ठीक है? Yes, Mayank 2022 NEET batch भी. Right, Jaya, thank you so much. So 1 month, 3 months, 6 months, 40,800 for 6 months. You can use this code. Same process. vdnt.in/ytpro. Yes, Sona. Sona. Come on, everyone. This is the calendar for the week. नहीं, दिन का कैलेंडर है ये, राइट? पर आपको देख के लगेगा यार इतनी सारी क्लासेस तो एक दिन में हो रही है. वी आर हैविंग 2 सेशंस राइट नाउ. द डे हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम योर फेवरेट #DG 115. फिर मेरी क्लासेस एंड यू कैन सी द होल कैलेंडर इज बुक्ड. चलो बच्चों, तो कर ले स्वैग से स्वागत सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का. यस जया पांडे, यस सचिन, यस कार्तिक, यस अनीता, यस एवरीवन. ओके, तो सबसे पहली बात है कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द नीट 2020 पेपर. किन किन बच्चों ने नीट 2020 का पेपर देखा था? क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी ऑफ यू सीन? जनरली फ्रॉम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यू एक्चुअली गेट 5 क्वेश्चंस. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 20 है, ठीक है? वेटेज 10% है. Correct. It's a very important chapter. But if you have seen the NEET 2020 paper, you would just find one question from cell the unit of life. तो हम बोल रहे हैं expected इतना हो सकता है, उससे कम भी कर सकते हैं. So we are assuming that NEET 2021, like I am assuming this. ठीक है, मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ कि NEET 2021 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे. करेक्ट बच्चों. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस सेशन. It's a one shot, so I hope you are ready with the pen, with the notebook, with the bottle, everyone out there. First of all, what is a cell? Okay, this is very, very important, right? All the species on the earth, whether it's bacteria, archaea, protista, fungus, plantae, animalia, हम सभी कोशिकाएं से बने. किससे बने बच्चों? कोशिकाओं, something like that, right? है ना? या फिर कोशिकाओं. And koshikao means cell in English, correct? Koshika, right? So 10 million living species on earth. All living organisms are made up of cells. ठीक है? जहाँ पे हो सकता है questions आए, I will tell you. Cell is the simplest collection of matter that can live. We all know. Fundamental unit of life, structure and function unit of life of plants and animals. Why I am calling it as a structural as well as functional unit. इन कोशिकाओं को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? अच्छा, हम सबके पास लीवर है, करेक्ट? हम सबके पास किडनी है. वी ऑल हैव लीवर, वी ऑल हैव किडनी. All the cells of the kidney are having just one function. And what's that? Yes, Champa. No, Chaitanya, I don't think so. Hi, Shiraj. Function of kidney. It's basically a filtering unit. Very good, Nakshatra. Blood purify. Yes, Trishala. Filtration of urine or filtration of blood. Okay, filtering blood. अब जो किडनी के फॉर एग्जाम्पल उसमें है 100 मिलियन सेल्स. लेट्स जस्ट इमेजिन 100 मिलियन सेल्स मेकिंग अप द किडनी. And we all know the basic structure of a kidney is the nephron. Correct? तो क्या ऐसा होगा कि एक सेल बोलेगा कि नहीं 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 आज तो मैं फिल्ट्रेशन नहीं करूंगा, है ना? Is it like that? No. The kidney is surviving because each one of them is giving support. Each nephron is giving support. Yes, Josna? Perfect? Right? तो ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ नहीं मैं नहीं करूंगा. Correct? Right? So इसका मतलब it's not only helping in giving a proper shape to the kidney बच्चों, but it is also helping in the function.
यस शमिका, वेरी गुड। बफरिंग हो रही क्या बच्चों? प्लीज टेल मी द चैट बॉक्स। डोंट गो एनीवेयर, विल जस्ट सॉर्ट इट आउट। अभी नहीं हो रही है, अभी परफेक्ट है। ओके, थैंक यू सर। चलो आ जाओ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, जिसमें कि बहुत ही कम ऐसा होगा कि क्वेश्चन आएंगे नीट में। ठीक है, तो क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। करेक्ट। ईयर क्या था? 1665। 65 1665। ठीक है। सो व्हाट ही डिड, ही टुक अ कॉर्क। व्हाट इज द कॉर्क? कौन सी ट्री से इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट? दैट इज इंपॉर्टेंट। विच ट्री रॉबर्ट हुक हैज यूज्ड? कौन सा ट्री रॉबर्ट हुक ने लिया था, उससे कॉर्क लिया था? यस एवरीवन, चलो बेटा आ जाओ। 1665 में ही एक्चुअली वाज हैविंग अ वेरी ओल्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ओक ट्री, वेरी गुड आंचल सिंगल, क्वैकरकस सुबर, ओक ट्री से किया था। क्वैकरकस सुबर इज द नेम, नाम याद रख लेना। और नाम क्या है? नाम क्या है? क्वैकरकस सुबर, राइट। ओके, ही टर्म्ड देम एज सेल्स। उसने कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया था? सिंपल और कंपाउंड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही यूज्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। He used a compound microscope from the oak tree Quakercus tuber. He cut a slice of cork, then he observed them in the microscope and he felt there are little room-like structures. Perfect. Little room-like structures, and in little rooms को इन्होंने बोल दिया cellula. And the word cell is right from the Latin word cellula, which means a little room. छोटे छोटे रूम्स देखे इन्होंने। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेलुला का मतलब क्या होता है बच्चों? लैटिन से वर्ड अगर डिराइव किया हुआ है, cellula is a Latin word which actually means in English the word cell, which means little room. Perfect. So ये हो गया आपका first part. Then one more question. He has not discovered a living cell. He discovered a dead cell. Why? Because cork is completely dead. We already know in anatomy, right? Cork is a dead cell. सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस के नीचे। यस प्रीति सिंह, छोटा कमरा, परफेक्ट। आ जाओ। सो नाउ केम रॉबर्ट हुक पर, तो सबको क्लियर हो गया। वन लाइक वन हार्ट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। उसने क्या यूज किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ईयर था 1665। ट्री का नाम था ओक ट्री। ओके। और होगा क्वेकरकस ट्यूबर। अब वो कॉर्क सेल हार्ड होता है, क्यों? कॉर्क सेल इज अ बिट हार्ड, व्हाई इट इज हैपनिंग? अर्चना आ जाओ। यस हिमांशु, परफेक्ट। Because it has a lot of deposition, right? It has a lot of depositions of the chemicals. Yes, it's dead. Very good रिया सोनी, क्योंकि वो dead था। ठीक है, जो स्लाइस लिया ना इन्होंने, ये डेड था और डेड सेल्स हमेशा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेस प्रोटोप्लाज्म और नो प्रोटोप्लाज्म, डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल्स मोर, राइट। ओके, स्क्लेरन काइमा ज्यादा हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो सकता है। परफेक्ट बच्चों। देन केम द लिविंग सेल डिस्कवरी। किन्होंने दिया था लिविंग सेल? एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, और यू आल्सो कॉल हिम एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट ऑब्जर्व किया लिविंग सेल, बट कौन से वाटर से? कुड बी अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किया था एक लिविंग सेल को। इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, ही जस्ट टुक द पॉन्ड वाटर, ही हैड हिज ओन इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। ईयर था 1673, right? That is 73, 1673 year, pond water, Anthony van Leeuwenhoek. But the question is living cell, not dead cell. If I talk about a true discovery of a cell, who you would name it? Would you call it as a Robert Hooke discovery or Anthony van Leeuwenhoek discovery? अगर मैं ट्रू लिविंग सेल को डिस्कवर करने की बात करूंगी, यस मिस्टर हिमांशु, वेरी गुड।
एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ही डिस्कवर्ड, जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में वो पॉन्ड वाटर के ऑर्गेनिजम्स को देखा, सो ही फेल्ट द ऑर्गेनिजम्स आर मूविंग, इनको लगा हाइला ये तो एनिमल जैसे लग रहे हैं, सो ही नेम्ड देम एज एनिमलक्यूल्स। डिस्कवर्ड सिंगल सेल ही किया, यूनिसेलुलर किया, याद रखना, not multicellular. Anthony Van discovered a unicellular living cell and he saw so many of them moving, okay, and he named them as animalcules. You can see the structures बच्चों, on the right side, मेरे राइट साइड पे आपको एनिमलक्यूल्स दिखेगा और लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा ल्यूवेनहॉक इन्वेंशंस, करेक्ट, ओके। तो ये इनका माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये हो गया एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो हो गई आपकी डिस्कवरी 2। यस बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे टेल है, स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर है, यू कैन से दैट स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर, दे आर मूविंग, दे आर मूविंग, दे आर मूविंग, ही फेल्ट लाइक दैट एंड दैट्स व्हाई ही नेम्ड देम एज एनिमलक्यूल्स, ओके। उसके बाद हमारे सर आए थे, 1665 हो गया, 1673 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन से सर आए, मैथियस क्लेडन। मैथियस क्लेडन थे एक बॉटनिस्ट, क्या थे, और बॉटनिस्ट का काम क्या होता है, प्लांट्स पे काम करना, करेक्ट बच्चों। सो जर्मन बॉटनिस्ट, जगह याद नहीं करनी, बॉटनिस्ट थे मैथियस क्लेडन, ठीक है। 1838 में मैथियस क्लेडन ने बताया कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल द प्लांट्स, रोज प्लांट, मैंगो प्लांट, योर फेवरेट फ्लावर, ठीक है, वो वाला फ्लावर भी जो 14 फरवरी को लेके जाओगे वो भी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। दिस वाज वन पॉइंट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, प्लांट्स की खोज, प्लांट्स के सेल की खोज किसने की थी बच्चों, इन द ईयर 1838 एम स्क्लेडन, और यू कैन सिंपली रिमेंबर स्क्लेडन, ठीक है। बट पता होना चाहिए कि स्क्लेडन के आगे मैथियस लगता है, यस शुभम दीप्ति, यस ओके। सो आगे चलते हैं बच्चों, अब आए हमारे जूओलॉजिस्ट। जूओलॉजिस्ट का काम क्या होगा, टू वर्क विथ एनिमल्स, ठीक है। तो थियोडर स्केवन स्क्लेडन ने बताया कि प्लांट एनिमल्स प्लांट सेल से बने हैं, और जूओलॉजिस्ट हमारे प्यारे थियोडर स्केवन सर ने बताया दैट 1839 में ये चीज डिस्कवर हुई कि एनिमल्स भी सेल से बने। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस सेल विच यू सी ओवर हियर, इस सेल का नाम क्या है जो मेरे ऊपर है, मैम इज कवर्ड विथ सेल्स, इसका नाम है आरबीसी। RBC is having nucleus or not? No nucleus. अच्छा, how many hemoglobin RBC has? A good question. वैसे तो I am a botany teacher, but I love teaching zoology as well, right? So RBC के पास nucleus तो नहीं है, but RBC के पास hemoglobin कितना है? Hemoglobin 4 है, अच्छा। So I can see many of you saying 4. One RBC is having 4 hemoglobin. Okay. So you will be surprised to know this, bachcho, that one RBC is approximately having 460 million hemoglobin. कितना? 460 million hemoglobin. आप जो 4 बात कर रहे हो ना, वो एक hemoglobin के 4 यूनिट होते हैं. In millions, it's 460 millions, it's 300 millions in one RBC, and that's why we don't have nucleus in RBC to create the space for the hemoglobin. Okay, so you can imagine how much lucky are we, right? Okay बच्चों, तो आज आते हैं नेक्स्ट, थियोडर सिवान जो कि एक जूओलॉजिस्ट थे। इन्होंने जरूर बताया कि एनिमल्स बने हैं किससे, animals are made up of cells बच्चों, but he also told that animals are having plasma membrane, correct, a membrane, a selectively permeable membrane along with cell wall in plants. So this could be a confusing question in NEET, right देवेंद्र पांडे, है ना, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है कि मैथियस क्लेडन ने क्या किया, कौन बताएगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट रेस्ट ऑफ द थिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, बिकॉज
Theodor Skewon was working on the cell wall or the cell membrane. So cell membrane for the animal cells, right? And cell wall for the plant cells. Perfect बच्चों. तो ये हमारे थियोडर स्केवान ने किया which year? 1839. Year is very important. Now we all know the animal cell and the plant cell. हमें सबको पता है animal cell कैसे दिखते हैं. You can see animal cell is having cell membrane. But यहाँ पे cell wall भी होगा. Some things which are absent in animal cell and present in plant. ऐसी कौन सी ऑर्गेनिल होगी जो एनिमल में एब्सेंट होगी, प्लांट में प्रेजेंट होगी? दैट कुड बी वन आंसर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, और आई कैन से प्लास्टिड्स. परफेक्ट. यस बच्चों, cell wall, plastids, these are the two things present in the only plant cell. What are the things present in only animal cells? Any idea? कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ एनिमल में? चैतन्य ने सेंट्रियोल्स बताया. सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स. ये देखो, these are centrioles and two centrioles are going to form centrosome. याद रखना, तीन वर्ड: सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर. There are three different things in the plant or the animal cell. प्लांट सेल में तो ये होता ही नहीं है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स. करेक्ट. वैक्यूल तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं. परफेक्ट. ओके, देन केम, तो ये तो जो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट, मैथियस क्लेडन, Theodor Skewon, they went to Rudolf Virchow and they were not having an explanation that how you get the new cells. For example, अगर मेरे स्किन के सेल चले गए, हाय भूतों का सरदार आ जाओ, अगर मेरे स्किन के सेल चले, क्या करें, आज बुढ़ापा आ गया, गिरते पड़ते रहते हैं हम, है ना? तो अगर मेरे स्किन के सेल चले गए, तो who are going to replace those cells? Obviously skin cells, but how they are going to replace? That is the question. Perfect बच्चों. So there was a physician. You can see physician भी आ गए इधर. ये थे physician. इन्होंने लगाई biology. ठीक है. Rudolf Virchow. He has given this very important term, omnis cellula e cellula. बच्चों, what is the meaning of omnis? What is the meaning of omnis? Anyone in the chat box? Yes, bone breaker gaming. किसका बोन तोड़ोगे भाई? Omnis means, very good, existing. I can say omnis is present everywhere. Present everywhere, और it's existing. omnis का मतलब होता है हमेशा प्रेजेंट रहेंगे. तो कोई भी सेल्स एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, और इसीलिए सेल्स ऑलवेज प्रेजेंट, राइट? सो इफ यू हैव दिस वन सेल, it can give rise to 2 by mitosis, or if you have 1, it can give rise to 4 by which process? Meiosis. So omnicellular e-cellula is given by Rudolf Virchow. फाइन बच्चों. अच्छा, इसके बाद हमारी सेल थ्योरी बन गई. जब हमारे पास बहुत सारी डिस्कवरी आ चुकी थी, तो सेल थ्योरी आ चुकी है. आई गेस नीट के लिए इसमें उतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर द पॉइंट्स याद होनी चाहिए. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? सेल. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल, ह्यूमन बींग्स, they are all made up of cells. Bacteria, protista, all the cells arise from pre-existing cell. Omnis cellula e-cellula. बस ये टर्म याद रखना है. दैट्स इट. ओके, सो लेट अस गो. उसके अलावा क्या सेल के पास जेनेटिक वाला कॉम्पोजिशन होगा? हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है. सेल्स आर हैविंग डीएनए, सेल्स आर हैविंग डीएनए, आरएनए, राइट? Single stranded DNA, single stranded RNA, double stranded DNA, double stranded RNA, depends on the organism. Perfect. The cells can have a basic composition. They can have carbohydrates, they can have fats, they can have proteins, they can have vitamins, they can have minerals. Okay. And metabolism, which is having two things, kata and ana. What is meta? Meta is sum total of the reactions. Perfect Sanjeev. Kata means cut करना, break down करना of the molecule.
एना मीन्स ज्वाइन करना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना है तो वो वाले रिएक्शंस को कैटाबोलिज्म, या ज्वाइनिंग द मॉलिक्यूल्स, दैट इज एनाबोलिज्म। परफेक्ट। ओके तो ये हो गए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देख लो ध्यान से, सभी सेल से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वी ऑल नो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर, multicellular. Can you name any unicellular organisms in the chat box which are made up of single cell? Come on बच्चों, क्या आप एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हैं जो एक सिंगल सेल से बना हो? परफेक्ट। अमीबा, योर फेवरेट ऑर्गेनिज्म ऑलवेज, राइट? किसी भी बच्चे की जिंदगी में who is a student of biology, अमीबा हमेशा फेवरेट होता है। अर्थवर्म इज नॉट यूनिसेलुलर, अर्थवर्म बैक्टीरिया, ओके वेरी गुड। यूजलेना पैरामीशियम, परफेक्ट। बस ये तीन आ रहे हैं। क्लोरेला, ओके, स्पिरुलिना, परफेक्ट। ईस्ट, परफेक्ट। माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड। अमीबा, किसी ने लिखा है AMIBA, बेटा ऐसे ही तो वो 6 लेटर से बना है, उसके लेटर को तुमने और उड़ा दिया है ना। डाइनोफ्लैजेलेट्स, परफेक्ट। सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। एपिफाइट्स क्या होता है? किस बच्चे ने पूछा एपिफाइट्स क्या होता है? पहले बच्चे का नाम पता होना चाहिए, राइट? हाइड्रा, ओ हाइड्रा इज यूनिसेलुलर। कम ऑन बच्चों, संग्राम हो गया ये तो, संग्राम हो गया ये तो बेटा, इतना बड़ा संग्राम। हाइड्रा इज नॉट a unicellular. Climadomonas, correct Mobini. Climadomonas, unicellular alga. Beta, Hydra is not a unicellular organism. Hydra is a multicellular organism. Hydra belongs to the phylum Coelentrates. Epiphytes means those plants, okay, जो दूसरे प्लांट का सहारा लेके आगे बढ़ जाते, प्रेमलता, राइट? एपिफाइट्स ऐसे प्लांट, फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स, मनी प्लांट्स, ठीक है, दूसरे प्लांट का सहारा ले सकते हैं और ऊपर चले जाते हैं। PPLO, सो गाइस यू नो सो मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टीसेलुलर तो आपको पता ही है, भौकाल मचा रहे हो बेटा, भौकाल। व्हाट इज PPLO? वी विल डिस्कस प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया यूनिसेलुलर। देखो बच्चा, देखो बच्चा, सारे बच्चे सुन लो, क्या सुन लो कान खोल के, मोनेरा प्रोटिस्टा, ये दो किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, करेक्ट, याद रहेगा। मोनेरा प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल बी यूनिसेलुलर बिकॉज मोनेरा इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट, परफेक्ट। उसके अलावा आगे फंगी में एक्सेप्शन आ जाएगा, फंगी में ईस्ट आ जाएगा जो कि यूनिसेलुलर है, ओके चलो। सो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वी ऑल नो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इज देयर अ डिवीजन ऑफ लेबर? नो डिवीजन ऑफ लेबर। बेचारे को खुद मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आप बोलते हो ना, हाय मैं नन्ही सी जान कितना काम करूं, मैम के सेशन भी अटेंड करूं, पढ़ाई भी करूं, फिर ये भी करूं, फिर वो भी करूं। कम ऑन बच्चों, यस, नो डिवीजन ऑफ लेबर, यस। एसिटोबुलारिया, एसिटोबुलारिया है क्या पहले ये पता होना चाहिए ना, बैक्टीरिया है, करेक्ट, राइट? सो इट्स यूनिसेलुलर। सो अमीबा हो गया, यूजलेना हो गया, क्लाइमेडोमोनास हो गया, जितने भी आपने बोला। पैरामीशियम कॉर्डाटम, साइंटिफिक नेम ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम कॉर्डाटम, ये सारे यूनिसेलुलर जो भी आपने मुझे बताए, दे आर नॉट हैविंग अ डिवीजन ऑफ लेबर। उन बेचारों को रेस्पिरेशन डाइजेशन बहुत खुद से करना पड़ता है, सो दैट इज द आयरनी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर, परफेक्ट। हमने अपने हाथों को कुछ काम दे दिया है, ब्रेन को कुछ काम दे दिया है, हाथ है, किसी को मार रहे हैं एक हाथ से, किसी एक हाथ से लिख रहे हैं, है ना, एक चट से मार दिया किसी को, करेक्ट, नहीं तन्वी खत्म नहीं हुआ, परफेक्ट, एक चट से मार दिया और दूसरे हाथ से लिख रहे हैं, परफेक्ट। यस अर्चना, गोला ग्लो, यस जूवी, वेलकम, आई एम वेरी हैप्पी, माय लॉन्ग टर्म स्टूडेंट इज हियर, राइट, एंड ऑल ऑफ यू आर हियर, आई एम वेरी हैप्पी। मल्टी टैलेंटेड है ना हम, डिवीजन ऑफ लेबर है हमारे पास, परफेक्ट बच्चों, राइट। भोकाल मतलब हाहाकार मच गई, है ना, SSP बाबा के टर्म्स में भोकाल का मतलब होता है, यस, ओके बच्चों। तो ये हो गए हमारे पेनक्रियाज। अगर फंक्शन की बात करें, लंग, रेस्पिरेशन, ब्रेन, फालतू के कामों में दिमाग लगाना, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, हार्ट सर्कुलेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, पेनक्रियाज डाइजेशन,
right? Egg for reproduction, sperm for reproduction, kidney for filtration, liver for conversion of glucose to glycogen and the formation of urea. Bone giving you support. Yes, Viraj. Okay, right? चलो आ जाओ, अब हम आते हैं सेल की साइज पे। छोटे सेल, लंबे सेल, बड़े सेल, राइट? दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स। छोटे, सबसे छोटे सेल, किसी बच्चे ने पूछा था मैम माइक्रोप्लाज्मा की साइज क्या होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। साइजेस आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। 0.3 माइक्रोमीटर माइक्रोप्लाज्मा का याद रखना, ठीक है? सेल कैन रेंज फ्रॉम 1 मिलीमीटर डाउन टू 1 माइक्रोमीटर। यहाँ तो 0.3 भी हो गया है। बैक्टीरियोफाज, व्हाट इज अ बैक्टीरियोफाज? इट्स अ वायरस व्हिच एक्चुअली किल्स अ बैक्टीरिया, जिसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है। विच वन इज बिगर? नैनोमीटर ज्यादा बड़ा है या माइक्रोमीटर? यस यस, कम ऑन। जो बच्चे यहाँ पे आए हैं नीट क्लियर करने के लिए, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम, ठीक है, राइट? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नैनो, नैनो बड़ा है। सो 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर। ओ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, एंड ओ ये क्या हो रहा है? जादू? ये जादू किधर से हो रहा है भाई? जादू जादू। ओके, तो ऐसा तो कुछ नहीं बेटा, जादू वादू हो रहा है इधर। चलो, सो 1 माइक्रोमीटर एंड 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ इट क्लियरली शोज दैट माइक्रोमीटर बड़ा है, नैनोमीटर छोटा है, ठीक है? तो इसका मतलब बैक्टीरियोफेज तो और भी छोटा है। बैक्टीरियोफेज तो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है, करेक्ट? बैक्टीरियोफेज माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा आपको 0.3 लग रहा था। नर्व सेल, द लॉन्गेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा। अंडा 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 अंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, बायोलॉजी का फंडा। So nerve cell is the longest, not the largest. Remember that. Longest. Okay, right? अच्छा, बैक्टीरिया के सेल देख लो, 3 से 5 माइक्रोमीटर। सारे माइक्रोप्लाज्मास नहीं होते हैं, परफेक्ट। ह्यूमन एग सेल थोड़ा बड़ा होता है, देखो 100 माइक्रोमीटर। आरबीसी को आप देख सकते हो, आरबीसी इज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कितना है? 7 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, 3 से 5। अगर स्मॉलेस्ट सेल का क्वेश्चन आया तो माइकोप्लाज्मा विल स्टिल रिमेन द स्मॉलेस्ट सेल, रिमेंबर दैट। लार्जेस्ट सेल का क्वेश्चन आएगा तो ऑस्ट्रिच एग विल ऑलवेज रिमेन द लार्जेस्ट एग, क्योंकि आपको दिख रहा है वो, देखो माइक्रो नहीं है वो, नैनो नहीं है वो। अगर माइक्रो और नैनो होता तो दिखता नहीं, वो सेंटीमीटर में आ चुका है, परफेक्ट। चलो, सेल की शेप की बात करें तो आरबीसी का जो होता है डिस्क शेप होता है, इसको बाइकॉनकेव भी बोल देते हैं कभी कभी, करेक्ट बच्चों? डिस्क जैसा। वो पुराने जमाने में सीडी आती थी ना गाने की, और वो हम खरीद के लाते थे। हैव यू डन दिस? अभी तो आप नए बच्चे हो, जो पुराने बच्चे इधर, हमारे जमाने के बच्चे, राइट? वो पुराने जमाने के बच्चे, हमारे जमाने के बच्चे, दे यूज्ड टू गो टू द शॉप, वहां से एक सीडी मिलती थी, ठीक है? वहां से सीडी मिलते ही हम उसमें गाने बजाते थे, राइट? इट वाज फन डेज, राइट? संडे यूज्ड टू बी फन डे, राइट? थिन एंड लॉन्ग, कैरी इम्पल्स, है ना? ट्यूब लाइक इलोंगेटेड सेल्स, तो ये सब आपको फंक्शन से रिलेटेड है, सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बाइकॉनकेव है आरबीसी का शेप, को याद रखना, करेक्ट? यस बच्चों, परफेक्ट। एंड दैट्स इट। ट्रैकाइड्स में परफोरेशन प्लेट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रैकाइड्स में क्या होता है बच्चों? परफोरेशन प्लेट्स होते हैं कि नहीं होते? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ये जो डायग्राम आपको एक तरफ दिख रहा है वो ट्रैकाइड्स का है या नहीं है? यस हिमांशु, यस मोनिका। वो क्या होता है? अच्छा, चाय बनाई है घर पे? हैव यू मेड टी? टी बनाई है या खुद पिए हो हमेशा? दूसरों को भी सेवा कर रही है दूसरों की, या खुद ही को अपना, अपने आप को ही हमेशा सब दिया है? परफोरेशन प्लेट्स, तो जब चाय बनाई है तो छन्नी में जो पोर्स होते हैं ना, उसके वजह से तो चाय नीचे जाती है, करेक्ट? कल ही की बात है, मैं चाय डाल रही थी, आधी चाय तो नीचे ही गिर गई, राइट? हाँ हाँ हाँ, ओके। एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू कैन इमेजिन, बेटा मम्मी होती है फिर किचन में, मम्मी। नेक्स्ट मोमेंट ना फिर कुछ नहीं होता, फिर मम्मी होती है, ठीक है?
परफेक्ट। सो यहाँ पे आपको ये जरूर याद रखना है कि वेसल्स जो होते हैं उनके पास परफोरेशंस होते हैं, परफोरेशंस। ट्रैकाइड्स के पास परफोरेशंस नहीं होते हैं, नो परफोरेशंस, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इन द डायग्राम। ठीक है, राइट। चलो, सो अब हम आते हैं थोड़े और पे, जैसे क्यूबॉइडल सेल्स हो गए, एपिथेलियम क्यूबॉइडल, या फिर जो भी आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो कभी कभी एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, सिक्रेशन में काम करते हैं, प्रोटेक्शन में काम करते हैं। और WBC के इरेगुलर शेप्स की अगर हम बात करें तो इरेगुलर से लेके, जैसे मैक्रोफेज है, इरेगुलर, ओवल, राउंड, अलग अलग तरह के शेप होंगे। सो नाउ यू ऑल नो, वो तो हो गया नंबर ऑफ सेल्स पे यूनियन मल्टी। टाइप्स ऑफ सेल्स तो आपको पता ही है, प्रोकैरियोटिक सेल का सिर्फ एक ही किंगडम है, वो कौन सा है किंगडम? मोनेरा। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोटिस्टा, इट गोज टिल एनिमैलिया। ठीक है, राइट। प्लांट सेल में प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव, carrion means nucleus, primitive nucleus, eukaryotic U is true, carrion is nucleus, so ये आपको पता होना चाहिए। okay, so you all can see the prokaryotes, it's very simple, no division of labor, unicellular। ठीक है, correct। and since it's not a kingdom chapter, so we are not going to discuss about the characters of the kingdom बच्चों। yes ईशिता शर्मा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, वी ऑल नो। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, इसमें कौन कौन आता है वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन आता है? बैक्टीरिया मेजर आते हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, फिर सियानो बैक्टीरिया जो कि एक मॉडिफाइड बैक्टीरिया, आई कैन से, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और पीपीएलओ, व्हाट इज पीपीएलओ? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं, व्हिच इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। परफेक्ट। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, दे चेंजिंग देयर शेप्स, दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो वो पीपीएलओ होता है। माइकोप्लाज्मा, ओके, इज वन ऑफ द पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये हो गया प्रोकैरियोट्स, ये हो गया यूकैरियोट्स। अब आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो प्रोकैरियोट्स में आपको सेल वॉल दिखता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी सेल वॉल दिखता है, जो कि किसी किसी यूकैरियोट्स में भी होता है। कैप्सूल भी दिख सकता है आपको, आई विल टॉक अबाउट द कैप्सूल लेटर। फ्लैजेलम होता है जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में नहीं होता। परफेक्ट, ओके। न्यूक्लियोइड होता है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? ये बहुत इंपॉर्टेंट। डीएनए इज कॉइल्ड without membrane, no membrane. In a eukaryotic cell, you have a membrane-bound nucleus. Nuclear membrane है. Prokaryote में nuclear membrane always absent, and the region where the DNA, the genetic material, the circular DNA is coiled, it is known as, yes, Vinay, nucleoid region. Let's just focus in the session, बच्चों। अब हम आते हैं बहुत important point पे, the shapes of the bacteria. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए, शेप्स आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली आप 4 शेप्स की बात करते हैं, राइट। फर्स्ट कौन सा है बच्चों? कॉकस। क्या है? कॉकस। सेकंड, कॉकस का मतलब राउंड, स्फेरिकल। सेकंड, एनीवन? बैसिलस। बैसिलस यानी कि ऐसा, रॉड शेप। थर्ड, Vibrio, that is comma. Perfect, perfect. Comma shaped Vibrio, rod shaped Bacillus, and round coccus. Come on, write it down. Then fourth क्या है? What is fourth? Spiral shape, जिसको हम बोलेंगे स्पिरिलम। Spiral. Okay, so these are the 4 basic shapes, and you should know the shape का meaning, मतलब वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉकस मतलब पता होना चाहिए कि राउंड है। बैसिलस मतलब पता होना चाहिए कि वो, यस प्रज्ञा, वेलकम बैक। सो वी हैव वन मोर स्टूडेंट फ्रॉम आवर लॉन्ग टर्म, ओके। कभी कभी जो हमसे मिलने आते हैं वो है हमारे प्रज्ञा राज जी।
Welcome to the session, Pragya. Okay. So coccus, bacillus, vibrio and spirillum. राइट बच्चों, आ जाओ। अब आपको क्या पढ़ना है इसमें और क्या चीजें याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बोलोगे कि दो कॉकस मिलके एक चेन बना रहे, क्या बना रहे हैं बच्चों? फॉर एग्जाम्पल हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, हम एक लाइन में खड़े हो गए, वी हैव क्रिएटेड वन लाइन, तो उसमें वर्ड आ जाएगा स्ट्रेप्टो। क्या वर्ड आएगा? स्ट्रेप्टो। क्या वर्ड आएगा? स्ट्रेप्टो। अगर मैं बोलूंगी दो छोटे छोटे बैक्टीरिया गोल गोल से, इमेजिन करो हम सब बैक्टीरिया हैं, राइट? इमेजिन अ सिचुएशन, हम सब बैक्टीरिया हैं, हम गोल गोल बैक्टीरिया अगर एक चेन बना लेंगे, हम दो की चेन बनाएंगे, तीन की चेन कभी भी एक से नहीं बनती है। यू ऑल एग्री विद दैट? चेन कभी भी एक से नहीं बनती है, दो तीन चार पांच छह सात, करेक्ट? तो वर्ड आएगा स्ट्रेप्टोकोकस। अगर दो आएगा तो डिप्लो, तीन आएगा तो ट्रिप्लो, चार आएगा तो टेट्रा, ओके है ना? बट उसमें जो वर्ड लगाएंगे वो होगा ऑलवेज स्ट्रेप्टो, रिमेंबर दैट। अब देखो यहाँ पे दो बैक्टीरिया थे, यहाँ पे 1 2 3 4 n नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे, बट दोनों के लिए हमने स्ट्रेप्टोकोकस यूज किया। परफेक्ट, दोनों के लिए हमने स्ट्रेप्टोकोकस यूज किया, राइट? नाउ अगर अगर हम रिंगा रिंगा रोजेस बना लें, मतलब हम एक ऐसा ग्रुप बना लें हम सभी का, जहां पे पहले एक सर्कल फिर एक सर्कल फिर मतलब मिक्स हो गया सब कुछ, वी आर फॉर्मिंग ग्रेप। हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक ईटिंग ग्रेप? योर फेवरेट? यस, मेरा फेवरेट है ग्रेप, ठीक है? तो वो हो गया आपका स्टफाइलो। यू विल यूज द वर्ड स्टफाइलो। सो द ग्रुप ऑफ the coccus shaped bacteria is staphylo. The chain of the coccus shaped bacteria is strepto. You should know this. टेट्राड का मतलब तो बहुत इजी, आपको पता ही है, चार स्पेरिकल बैक्टीरिया साथ साथ में। अच्छा, सरसीना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सरसीना मतलब चार आगे चार पीछे, चार अंगूर आगे की तरफ चार अंगूर पीछे की तरफ, राइट? हालांकि अंगूर गोल नहीं होते हैं बट फिर भी इमेजिन दैट वे, इट विल बी हेल्पिंग यू। आपको लगेगा कि मैम इधर तो साथ ही है, बेटा एक छुपा हुआ है, करेक्ट? चलो ये हो गया आपके स्पीयर्स और कोकाई के बारे में। अच्छा, रॉड्स और बेसिली, ठीक है? अगर एग्जांपल्स याद करने हो तो बैसिलस एंथ्रासिस विदाउट फ्लैजिला वाला रॉड शेप बैक्टीरिया, कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जिसके पास फ्लैजिला नहीं है बट वो रॉड शेप्ड है और उसने चेन बनाई है, तो वो है बैसिलस एंथ्रासिस। यस शालिनी? यस, कम ऑन एवरीवन। यस सयन? Then you have Salmonella typhi. Salmonella typhi causes which disease? नो नो प्रदीप, यहाँ पे डेड और लिविंग बैक्टीरिया की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। यस कम ऑन बच्चों। टाइफॉइड, परफेक्ट। सैल्मोनेला टाइफी causes टाइफॉइड। व्हाट अबाउट बैसिलस एंथ्रासिस? व्हाट अबाउट बैसिलस एंथ्रासिस ने क्या कॉज किया? जिसके पास फ्लैजेला इलपो नहीं था। नहीं इरफान, एंथ्रैक्स डिजीज, वेरी गुड। अच्छा, क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, ये स्पोर्स फॉर्म करता है। एंड व्हाट इज दैट यू नो अबाउट क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम? फूड पॉइजनिंग, करेक्ट? रिमेंबर दिस, क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम इज कॉजिंग बोट्यूलिज्म एंड दैट इज अ काइंड ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया। आपको थोड़े एग्जांपल्स पता होने चाहिए हर एक शेप के। इफ आई आस्क यू विब्रियो कॉलेरे, इट्स अ विब्रियो शेप, कॉमा शेप, एक फ्लैजिला है। स्पिरिला की बात करूं, हेलियोबैक्टर पाइलोरी, ट्रेपोनेमा पैलिडम, स्पाइरोकेट्स बोलते हैं इनको, दिस इज कॉजिंग ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या कॉज करता है? एनीवन इन द चैट बॉक्स? बेटा मैम का बर्थडे नहीं आज, सुबह दर्शनी। कम ऑन बच्चों, स्पाइरोकेट्स क्या कॉज कर रहा है? यस मनोजी। सिफिलिस, यू शुड नो द कॉजेटिव एजेंट, द डिजीज कॉज इस चैप्टर के इस पार्ट से, करेक्ट बच्चों? राइट? ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, करेक्ट? परफेक्ट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स जस्ट सी दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज वन शॉट, तो फटाफट से मैं आपको हर एक चीज का फंक्शन बताऊंगी। बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बना होता है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन से। अगर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड,
जहां पे NAG, NAM, NAG, NAM, इट जस्ट रिपीट्स, ठीक है। NAG, NAM क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे। डोंट मिक्स थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट मिक्स थिंग्स। आप चीजों को मिक्स करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कहाँ पे था, कौन अंदर था, कौन बाहर था, पता ही नहीं होता। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये याद नहीं रखने की जरूरत है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, NAG और NAM से बना है। NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, NAM. This together forms a peptidoglycan and that forms the cell wall. Perfect. अच्छा, फ्लैजेलम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, फ्लैजेलम अगर सिर्फ एक होगा बैक्टीरिया के पास, उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। क्या बोलेंगे? मोनोट्रोकस, ठीक है। सिर्फ एक फ्लैजेला, मोनोट्रोकस। फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी, पेरिट्राइकस, ठीक है। सिर्फ एक फ्लैजेला होगा तो मोनो, पूरे बॉडी में फ्लैजेला होगा तो पेरिट्राइकस, ठीक है। अगर दोनों तरफ फ्लैजेला होगा, मतलब बंडल्स में, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, उसको क्या बोलेंगे? एम्फीट्राइकस। क्या बोलेंगे? एम्फी मतलब बोथ साइड। इजी है, मोनो वन फ्लैजेला, पेरी ऑल ओवर दी बॉडी, ठीक है। एम्फी इज बोथ साइड, करेक्ट। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस क्या होगा? लोफोट्राइकस क्या होगा? तो मैंने 4 वर्ड बोले बेस्ड ऑन फ्लैजेला, बेस्ड ऑन फ्लैजेला नंबर, या बेस्ड ऑन फ्लैजेला पोजीशन भी आप बोल सकते हैं। अगर सिर्फ एक फ्लैजेला हो, किसी भी तरफ हो सकता है। वन फ्लैजेला होगा तो मोनो वर्ड यूज करेंगे, बोथ साइड्स होंगे तो एम्फी वर्ड यूज करेंगे। अगर पूरी बॉडी में होगा तो फ्लैजेला ऑल द सरफेस, ऑल अराउंड द सरफेस, पेरी यूज करेंगे, ठीक है। अगर इट इज ग्रुप्ड इनटू वन साइड, मेनी फ्लैजेला, वन साइड मेनी फ्लैजेला के लिए विच वर्ड वी विल यूज? कम ऑन बच्चों, वन साइड फ्लैजेला के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दैट इज लोफोट्राइकस। नॉट देयर इन एनसीईआरटी बट यू शुड नो अबाउट दिस टर्म्स, राइट। सो ये हो गया लोफोट्राइकस। परफेक्ट बच्चों। अच्छा, तो सेल वॉल बना है पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ नैग, नैम, नैग, नैम एंड सो ऑन। फ्लैजेला नंबर मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियोइड, यू ऑल नो व्हाट इज न्यूक्लियोइड? द रीजन वेयर DNA इज प्रेजेंट विदाउट मेम्ब्रेन। What is pilus? Pilus is a structure outside which is having a pillin protein. कौन सा प्रोटीन है? पिलिन प्रोटीन है पाइलस में। पाइलस का फंक्शन क्या है? पाइलस इज हेल्पिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, दैट इज कॉन्जुगेशन। उसको क्या बोलते हैं? दो बैक्टीरिया आपस में जब पास आते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पिलिन प्रोटीन, जिसका नाम हमने दिया है कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है कॉन्जुगेशन, करेक्ट बच्चों, ठीक है। तो राइबोसोम्स किस टाइप का है? 70S का राइबोसोम्स है। 70S ऐसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, कभी कभी इनके पास ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है, अ टफ कवरिंग आउटसाइड द बॉडी। सेल वॉल के बाहर पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के होते हैं, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। व्हाट इज स्लाइम लेयर? पतली सी लेयर अटैच करवाने के लिए होस्ट के साथ, बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया हमारे अंदर आया तो बैक्टीरिया विल हाउ इट विल अटैच टू द बॉडी, कैसे अटैच करेगा बॉडी से? अपनी वो स्टिकी लेयर से अटैच करेगा, जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं बच्चों। या फिर अगर उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच करना है तो वो कैप्सूल क्रिएट करेगा। व्हाट इज फिम्ब्रिए? फिम्ब्रिए इज ऑल्सो यूज फॉर अटैचमेंट, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज मेसोसोम्स? मेसोसोम्स इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यू ऑल नो। प्रोकैरियोटिक सेल विल नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स फ्लैजेला एंड यूकैरियोट्स फ्लैजेला। स्ट्रक्चर तो कॉमन होगा, बेसल बॉडी, ओके, देन हुक, देन फ्लैजेला, राइट। किसी बच्चे ने पूछा मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो दोनों सेम है। अगर मैं मेसोसोम्स की बात करूंगी तो ये फोल्डिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म नहीं है,
फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारे जो वन वर्ड के फंक्शंस है ये आपको पता होने चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाएगी एंड व्हाई इट विल बी फोल्ड चैतन्य, दैट इज मेसोसोम्स। ठीक है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट विल फोल्ड लाइक दिस. These foldings are mesosomes, which increases the surface area for the extension, for the surface area for the reactions. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम कर रहे हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में who can tell me, who can actually relate this structure to something in mitochondria? Let's see. We have so many kids right now. कौन बता सकता है? Yes बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया से किस स्ट्रक्चर को आप लिंक कर सकते हो? आंचल सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म सबको लेके इंक्लूड करके बताते हैं. क्रिस्टे, परफेक्ट, क्रिस्टे. माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे इज इक्विवेलेंट टू मेसोसोम्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. तो सबको ग्लाइकोकैलिक्स समझ में आ गया. वन हार्ट, आउटर मोस्ट लेयर, स्लाइम लेयर, बस पता होना चाहिए. आप नीट के हिसाब से बता रहे हैं तो पता होना चाहिए कि ये होता क्या है. ये थिन होता है, ये थिक होता है. थिक, हार्ड, थिन एंड सॉफ्ट, स्टिकी. ठीक है, अच्छा. इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ये होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना है बच्चों? Come on everyone in the chat box. It is made up of polysaccharides. Glycocalyx is made up of polysaccharides. Important. अगर कॉम्पैक्ट होगा तो कैप्सूल बोलेंगे, अगर डिफ्यूज मतलब थोड़ा सा स्लाइमी होगा, थोड़ा सा स्प्रेडेड होगा तो स्लाइम लेयर बोलेंगे. परफेक्ट बच्चों. अच्छा, यूकैरियोट्स में जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स, पर उससे पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के बारे में मैं बता दूं आपको. हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम. क्या था साइंटिस्ट का नाम? हैंस क्रिश्चियन ग्राम. साइंटिस्ट का नाम याद रखना. ठीक है, यस एवरीवन. हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, सारे ही मोनेरा किंगडम्स में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड कर दिया. ये जो ग्राम पॉजिटिव थे, इन्होंने स्टेन के साथ एक स्टेन यूज किया जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेन. क्या बोलते हैं? एक स्टेन यूज किया गया जिसका नाम था ग्राम स्टेन, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट. यू माइट हैव हर्ड द वर्ड ऑफ क्रिस्टल वायलेट. साइंटिस्ट का नाम हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ग्राम स्टेन का नाम क्रिस्टल वायलेट. जब क्रिस्टल वायलेट कुछ बैक्टीरिया को दिया तो उन बैक्टीरिया ने रिटेन कर लिया क्रिस्टल वायलेट को, क्योंकि उनके पास थे थिक पेप्टिडोग्लाइकन. क्या था? थिक पेप्टिडोग्लाइकन. और ग्राम नेगेटिव के पास था थिन पेप्टिडोग्लाइकन. तो जिसके पास थिक था उसने अपनी पोर साइज की वजह से उसको रिटेन करके रख लिया कलर को, तो उसको बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव. सो कैन आई से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कैन टेक अप द ग्राम स्टेन. बोल सकते हैं ग्राम पॉजिटिव ऐसे बैक्टीरिया थे जो ग्राम स्टेन ले सकते थे बिकॉज दे वर हैविंग अ थिक पेप्टिडोग्लाइकन. It was I guess 1884. इरफान कब डिस्कवर हुआ था? 1884 की कहानी है. Yes, स्टेटस किंग. तो ग्राम नेगेटिव क्या होगा? ग्राम नेगेटिव कैन नॉट रिटेन बिकॉज थिन है. तो जो थिक होगा उसका कलर क्या होगा? क्रिस्टल वायलेट का कलर पर्पल कलर. ठीक है, सो इतना जरूरी नहीं है डिटेल जानना, बस आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता क्या. ग्राम पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव है क्योंकि उसने ग्राम स्टेन ले लिया, एंड ग्राम नेगेटिव है बिकॉज उसने ग्राम स्टेन नहीं लिया. करके करेक्ट बच्चों. चलो, यूकैरियोट्स देखो कॉकरोच डांस कर रहे हैं, जर्मिनेशन हो रहा है, ये कैट किसी को मारने वाली है, द टर्टल इज स्विमिंग एंड सो मेनी थिंग्स. सो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा. राइबोसोम्स कैसे होते हैं यूकैरियोटिक में? राइबोसोम्स यूकैरियोटिक के 70 और 80s ऐसे सेडिमेंटेशन, जिस पॉइंट पे वो सेडिमेंटेशन करता है वो 80 है. परफेक्ट. न्यूक्लियस इज हैविंग अ मेम्ब्रेन. वी हैव अ स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस. फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेल्स में, सारे ऑर्गेनेल्स में हम बातें करेंगे सब चीजों के बारे में. यहाँ पे पिली का फंक्शन यू शुड नो, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है.
फ्लैजेला नंबर के अकॉर्डिंग फ्लैजेला का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मोनोट्राइकस, पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। राइबोसोम्स आर 70s। सेल वॉल प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। न्यूक्लियर इज अ डीएनए रीजन विदाउट मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में वी ऑल नो डीएनए है, न्यूक्लियर एनवेलप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, साइटोप्लाज्म इज देयर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज देयर, तभी तो उसका नाम यूकैरियोटिक है। परफेक्ट, तभी तो उसका नाम यूकैरियोटिक है बच्चों, राइट? तभी उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं बिकॉज इट्स अ फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म। Why is the resulting ribosome 70s and not 80s? A good question, Sudhavna. Sudhavna, stay connected with the part 3 also, जहाँ पे हम ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे और वहां पे मैं आपको बताऊंगी 70s और 80s का फंडा, ठीक है? राइट बच्चों, तो यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स में वी ऑल नो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने, जैसे ट्रेन में कंपार्टमेंट्स होते हैं, डब्बे बने, हर एक डब्बा का अपना अपना काम होगा। They have small structures, organelles, they perform specific functions, isolate reactions from other. What is this? Very important. हर एक compartment का reaction is separated from the other compartment reaction. Perfect? Yes, Mohit? ठीक है? So, यूकैरियोटिक सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में क्या पता है आपको? व्हाट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? दैट वी ऑल विल डिस्कस टुमारो, लेकिन नहीं, टुमारो आपका होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हम शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। परफेक्ट बच्चों, हम शुरू करेंगे एंडोसिम्बायंट थ्योरी। एंडोसिम्बायंट एक ऐसी थ्योरी थी जहां पर ये बोलते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उस थ्योरी से आए हैं बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास 70s का राइबोसोम था, ठीक है? एक सिम्बायोसिस हो गई थी, मतलब एक यूकैरियोटिक सेल था, ऐसा सोचा जाता है साइंटिस्ट के थ्रू कि एक यूकैरियोटिक सेल था, उसके अंदर ना बैक्टीरिया आ गए थे, ठीक है? और इसीलिए वो सिम्बायोसिस करने लगे और धीरे धीरे वो बैक्टीरिया तो मर गया, बट उसके जो 70s के राइबोसोम्स थे दैट बिकेम द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और द माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर एंडोसिम्बायंट थ्योरी इज फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि आप सभी को पता होगा यूकैरियोटिक सेल में हर जगह पे आप 80s राइबोसोम्स देखते हो, एक्सेप्ट यस बच्चों, एक्सेप्ट कहां पे नहीं देखते हो? एक्सेप्ट वन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो वो जो दो ऑर्गेनल्स हैं वो आपके एंडोसिम्बायंट थ्योरी से। इरफान, नॉट रिक्वायर्ड फॉर नीट। यस मोहित कुमार दास, है फ्लैजेला में है, फ्लैजेला में दोनों है, 9+0 है, 9+2 है। वी विल डिस्कस, डोंट वरी, ठीक है? जब फ्लैजेला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सो गाइस, मेंटी आपका चैप्टर वाइज मेंटी है, चैप्टर वाइज मेंटी है रोहिणी, सुशील, एवरीवन। कल आएगा पार्ट 2। स्टे कनेक्टेड, सेम एट 12 PM। आई विल बी लाइव आफ्टर 15 मिनट्स। 1:15 को मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लान्स चल रहा है हमारा CBSE 2022 के लिए। सो वो हम 2022 वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं जहां पे हम प्लांट वाटर रिलेशंस की बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप बच्चों, ठीक है? मेंटी होगा सोना ठाकुर कल, परसों, तरसों इज व्हाट? ट्यूसडे। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, फ्राइडे यू विल बी हैविंग अ मेंशन ऑन दिस चैप्टर, बट स्टे कनेक्टेड। पार्ट 2 पार्ट 3 वन शॉट में खत्म कर देंगे। परफेक्ट। सो इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक इट, एंड इफ यू वांट टू जॉइन द प्रो बैच, अगर आप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना। आज का कूपन कोड है DK Pro बच्चों। DK Pro से यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 7,800, ओके? एंड प्लीज डाउनलोड वेदांतु ऐप, रेट अस ऑन गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर योर इमेंस लव, ओके? एंड ब्लेसिंग्स जो आप मुझे देते रहते हो, और मेरी भी ब्लेसिंग्स ले लो, ठीक है? सुशील, रेगुलर मेंटी में हमेशा करवाती हूँ, इट्स अ वन शॉट। सो हम करेंगे मेंटी चैप्टर के बाद, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द नीट level we will do the menti. So love you bachcha log, bye bye, take care. Irfan, my class timing is always 12 PM and 1:15 PM unless until there